Okay. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा सुनने का दिल कर रहा था बहुत। वो नया शब्द है कोई, आई वांटेड टू हियर, पर वो बंद हो गया। चलो नेक्स्ट टाइम। बट गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, जय श्री कृष्ण। आपको Good morning, good morning, Jai Shri. yeah, last week we met. So, I mean, I'm very happy that you could make it today, and it was a very good topic that we chose this time. And आपने बड़ा timely, you can say all the time that they are timely topics. Very how to control anxiety, fear, and restlessness. You know, and this time of the, I mean, यहाँ पे तो यही होता है. Everybody's always anxious. Everybody's always restless. Everybody's always anxious, anxiety, fear. All these things are too much nowadays with all the things that's going on. So many things are going on. But so welcome Narinder ji will explain to us. तो उससे पहले हम थोड़ा world peace के लिए जाते हैं, and we really want Yeah. to again uh, pray for everybody, pray for what's going on, and that I will request you to do that for us. Okay. And thank you, Veena ji. We will start the word prayer, but before that, I want to convey my best and good wishes and blessings to my dear, the youngest Audrey, Yeah, your what about that? Yeah. granddaughter, Mhm. and we wish her good health, quality of life, and all her dreams come true. I'm gonna tell her that. So, Yeah, I really want to wish her, my dear yeah, Audrey, very happy birthday. Love you, Nani. Nanu loves you a lot, and yeah, we are very happy that you're becoming a teenager, and so that's a big step to growing up big and step. becoming a big girl. And you know, you're gonna go she's going to go to Europe with me, so she's going to be my helper and everything, help me out. So I'm looking forward to that. And my other granddaughter Maya, she's gone to the camp, so she's very happy with her friends. So hopefully, I'm sure she's gonna have a good time there. So God bless them. And yesterday there were a lot of people's birthdays. Shelly G's, Jug G's, Anjali G, a lot of my Facebook friends, and also my father's birthday was yesterday, and also Kamlesh Ji's grandson's birthday. So a lot of people. I want to wish all of them who had a birthday yesterday again, once again, a very, very, very happy birthday. And again to my granddaughter Audrey, big birthday and a lot of love to you. So हमने चलो बर्थडे की भी बात होगी, अब चलो चलते हैं प्रोग्राम के, शुरू करते हैं। आप वर्ल्ड पीस की, रविंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग हर। थैंक यू, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट बट यू रिमाइंडेड मी। वेरी गुड। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। Let's start today with Gayatri Mantra, which is the seed mantra, all the mantra, with the meaning, and then we'll immediately go to the word piece. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Devo Yonam Prachodayat. Meaning, तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, मृत्यु के दर्द हरता तू, तेरा महान तेज है फैला हुआ सभी स्थान,
सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते यही दुआ। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्योर्मा अमृतं गम्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ By the invocation of these divine mantras, we are seeking the blessing of the Almighty to grant peace to this suffering humanity on this planet. And Yes. His blessings and His intervention is required at this time because people have become very toxic. There's a lot of hate and murder and torturing going on. Only His blessings and mercy can solve this problem. So we once again pray to the Almighty. Jai Shri Krishna. Yes, And I agree. Lot of times, lot of things are going on. I mean, I know that a lot of countries they have a lot of problems going on with each other. I know that, but my question is this: that um, even the entertainment world, singers, entertainers, they entertain everybody in the whole world. निरंतर मैं आपको बस छोटा सा सवाल पूछ, जो भी ऑडियंस है मैं पूछना चाहती हूँ. Now, people's movies are being पहले बनी हुई हैं, अभी रिलीज हो रही हैं, तो उसमें आर्टिस्ट कोई इस कंट्री का कोई इस कंट्री का आ गया, चलो हो गया, तो उसमें भी it become a very big thing, fiasco कि why is that person from that country, मतलब मूवी द गाय सेइंग मूवी पहले की बनी हुई है, अब मैं उसको अगर नहीं करूँगा रिलीज, उसके पैसे वेस्ट, सारे पैसे विल बी गॉन. सो इज दैट फॉर द पब्लिक, इज दैट द राइट थिंग, एटीट्यूड और राइट थिंग टू डू? तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई when somebody is giving entertainment में ही होता है कि entertaining everybody in the world, it can be from any place. Entertainment में तो इतनी hatred and meanness नहीं आना चाहिए. But that's my opinion. Maybe I'm wrong. What do you think? Narinder ji, आपकी question आई है. Even the audience over here. I mean, Kamlesh ji, Rama ji, somebody else over here, please. If you can answer me, that would be great. yeah, they can also ask. Yeah. This question is very timely. क्योंकि इतना कुछ विजुअली हो रहा है, हम देखते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है एंड सिंगर बड़े बड़े डिवाइन भजन गाते हैं, एंड फॉर लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द बर्ड्स, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, वो उड़ के इधर चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, राइट? और समुद्र में भी जो फिशेस हैं
वो हम कहते हैं ये इंडियन ओशन है, फलाना ओशन है। ओशन तो एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मछलियों जो फिशेज है उनको नहीं पता, वो इधर भी चली जाती हैं, उधर भी चली जाती हैं। ये जो मैन जो है ना, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये देखो, हम हमारे चारों तरफ जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है उसमें हम रह नहीं रहे, हम अपनी बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं, इसलिए सफरिंग है। हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़ी कारें ले ली, राइट। ये हमारी दुनिया है, हम तो खाली आता है, तो जाना भी खाली आता है। इट्स राइटिंग ऑन द वर्ल्ड। कितनी भी विल बना लो, कितने भी आप लिविंग ट्रस्ट क्रिएट कर लो, डज नॉट मैटर, आपको खाली आ जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी रियलिटी होते हुए भी हम अपनी लाइफ एडजस्ट नहीं करते, हम इसी में खुश हैं, इसी में खुश हैं। और ये जो फिल्मी वर्ल्ड है या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, वो भी इसी दुनिया का पार्ट है, इसी दुनिया का पार्ट है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी आदमी चेंज नहीं हो रहा। ये जो बड़े बड़े अच्छे कलाकार हैं, वो जब घर जाते हैं तो वो उस टाइप की थिंकिंग नहीं है उनकी। वो तो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन नहीं करते। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। देयर इज नो रिकंसिलिएशन। वही कलाकार जो इतने अच्छे भजन गाता है, शब्द गाता है, जब वो घर जाता है तो वो उसकी थिंकिंग वो थिंकिंग नहीं है उसकी। सो दैट इज व्हाई स्पिरिचुअलिटी किक्स इन, कि भी स्टॉप इट एंड जस्ट थिंक व्हाट यू आर डूइंग। देखो, हम कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हीं कंपनियों में करते हैं जहाँ डिविडेंड मिलता है, हर जहाँ रिटर्न हो आपकी इन्वेस्टमेंट की। ये नहीं हम देखते कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी बनाई हुई दुनिया में, दी वर्ल्ड ऑफ आईनेस जिसको हम कहते हैं, उसमें रिटर्न कुछ नहीं है, क्योंकि आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल। तो अगर खाली हाथ जाना है, क्योंकि खाली हाथ आए थे, तो ये वाहे गुरु की सारी सृष्टि है, हम्म। उन्हीं का ये सारा तमाशा है। हम अपनी स्टैंप पे लगाई जा रही है, मेरा घर है, मेरा फलाना है, ये वो है तो उनका, वही राइट। है। राइट। हम मंदिरों में आरती करते हैं, हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, राइट। लेकिन बिल्कुल डालते उसमें $1 है, बाकी सारे रख लेते हैं। तो उसका ये हो कि तेरा तेरा तुझको और बाकी सब मेरा। या तो इस टाइप की जो प्रैक्टिकल लाइफ हम बता रहे हैं, इसलिए हम सफर कर रहे हैं, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। इसीलिए जो विजुअली जो हम देख रहे हैं, इतनी कितनी खुशहाली है इस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन मजदूरी भी बड़ी है, हम उन 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 टेरिटरीज में जाते नहीं है, राइट। आप एक बार जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कितने ऑर्फन हाउसेज हैं, कितने अंडर प्रिविलेज लोग रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हमें वही है। पता नहीं है। वो सारे ब्लाइंड व्यू में चले जाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि भी इतनी एंटरटेनमेंट होते हुए भी ये ऐसा, इतनी दुश्मनी कहाँ से आ गई, या वो इसीलिए है कि देखो, जैसे हम दो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस फोरम में बातें कर रहे हैं, तो बातें अगर हम अपने दिल से करें तो वो इफेक्टिव होगी। क्योंकि अगर आप उसी तरह की जिंदगी बता भी रहे, तो अगर मैं फर्ज करो एक आदमी है, वो अंदर से ठीक नहीं है, राइट, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के थ्रू ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ओके। अंदर से वो बंदा ठीक नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ओ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। बातें तो वो वही करेगा जो अंदर से है, राइट। बिल्कुल। तो ये जो लीडरशिप है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो डिफेक्टिव है। उनकी अपनी जिंदगी देखो, भरी पड़ी है ये बुरे कामों से। When we don't name this forum anybody, but हम्म। look around the world leaders, उनकी जो अपनी जिंदगी है वो टेरिबल है, टेरिबल है। तो जब अंदर से वो लीडर ही नहीं ठीक है, तो शांति पीस कहाँ से ले आएगा। दैट इज व्हाट द थिंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे आल्सो,
कि Right. एट योर ओन लेवल अगर कल को आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप भी अच्छे काम तभी करोगे अगर आप अंदर से अच्छे हो। Right. अगर अगर मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, टुडे देयर इज लॉट ऑफ प्रिटेंशन, पीपल आर फुल ऑफ लिप सिंपैथी, Oh yeah. दूसरों को खुश करने के लिए कुछ कह देते हैं या दूसरों से डर के कुछ कह देते हैं, लेकिन अंदर से नहीं वो एक्सचेंज करते। तो इसीलिए ये जितना पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, वर्ल्ड लीडरशिप, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वी क्रिएटेड यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ Right. ऑर्गेनाइजेशन। उसका सिर्फ पर्पज ये था कि लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि दे सा दी 60 million people were killed in World War II. Right. Oh yeah. Different nationalities, different borders, whatever. Total I am talking. तो इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन के बाद जो उस टाइम के लोग थे जो वार से थक गए थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की यूएनओ। लेकिन अब जो यूएनओ है उन्हीं लोगों के साथ भरी हुई है जो जिनकी थिंकिंग ठीक नहीं है। वो एट दैट लेवल दे आर प्रेजुडिस, आपको फेवर कर देंगे, मुझे फेवर नहीं करेंगे। Hmm. ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इतनी बड़ी जो ये रिगमरोल चल रहा है, इतनी बड़ी अशांति है, वो इसीलिए है द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, कंट्री के लीडर्स हैं, वो अंदर से ठीक लोग नहीं, वो अंदर से ठीक नहीं है। तो जो आपने देखा भी अपने लेवल पे जो एसोसिएशन हैं, देयर आर लॉट ऑफ एसोसिएशन, Oh yeah. उनके जो प्रेसिडेंट हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उनका, उनमें आप देखो 20 बंदों की एसोसिएशन है, वो आपस में लड़ते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड जिसमें 7.8 बिलियन लोग हैं, Yeah. हैं? तो 20 लोगों की लीडरशिप तो ठीक नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लो, तो इतना पॉलिटिक्स है, इतना। एंड देन वी हैव द ऑडेसिटी टॉक अबाउट वर्ल्ड पीस। आर यू किडिंग मी? 20 आदमी तो आप इकट्ठे रह नहीं सकते, घरों में भी। Exactly. अभी उनकी दैट इज माय मीटिंग, अभी there was a NATO meeting अभी recently पॉइंट। हुई थी, तो उसमें nobody gets, they don't get along. The leaders of the countries, right, वो सब मिले थे। यूरोप के या यूरोप में बहुत यूरोप, lot of Europeans, yeah. But they don't, half of them they don't get along एक दूसरे से, they don't like each other. तो वो बोलकर आप ठीक कह रहे हो, how can they bring the peace to all the world leaders ही आए ना, सारे world leaders आए हैं। जो G8 की कॉन्फ्रेंस हुई है, या अभी हुई थी, यस। G8, and या our president was the participant in that. या And what happened there, you can see it. And supposedly they are the world leaders. They या are वो मैं running. कह रही हूँ जी, या They जी are थी, running. राइट। तो they are running the countries. अगर उस इतने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में जाके भी ये लोग ठीक बातें नहीं कर रहे, राइट, तो हम तो बेवकूफ हैं जो वर्ल्ड पीस ढूंढ रहे हैं। और छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, मैंने ये तो मैक्रो लेवल हो गया, माइक्रो लेवल पे मैंने आई गेव यू एग्जांपल ऑन लॉन्ग आइलैंड देयर आर सो मेनी एसोसिएशन, राइट। उनकी जो लीडरशिप है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ईच, वो ठीक नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। बट दे थिंक दे आर गुड, है यू नो, दे, वो तो सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। जी। तो ये अगर फर्ज करो इनमें से कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि लॉन्ग आइलैंड में 20 आदमी को तो ये ठीक कर नहीं सकता। So now he is the world leader. आई नो, दैट्स ट्रू। That is what is happening. So that is why our topic today is, यस, right? कनेक्टेड टू We are, दिस। we are going. आपका question बड़ा अच्छा था, and we discussed in macro and micro form both way. So our today's topic is कि भाई there is a lot of fear. हम देखो, हमारी जो body है, as I said it before, we come alone, we go alone, right? ये जितना खेल तुम्हारा सर्कस आपके अराउंड चल रही है, it is artificial. या It disappears in a moment, just like that. लेकिन इतनी बड़ी रियलिटी हम देख के भी
हम अपनी लाइफ को एडजस्ट नहीं करते अपने लेवल पे, और उसी में हम चले जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, रात को नींद नहीं आती, इम्यून सिस्टम नहीं है, शुगरें इतनी इतनी बड़ी बढ़ गई है, A1C, क्योंकि लोग मिठाइयाँ इतनी खाते हैं। आप देखो पार्टियों में लोगों की प्लेटें भरी होती हैं, राइट, आधी फेंक देते हैं चीजें। Yeah, yeah. मॉरल That's true. मॉरल True. मॉरल Very bad. सिन। Very bad. या तो ऐसी लाइफ में इसीलिए सारा ये टर्मोइल है। ईश्वर ने जो आपको सृष्टि दी है, आपका शरीर दिया है, राइट, सभी का शरीर एक जैसा, दो आंखें हैं, दो कान हैं, नोज है, माउथ, बॉडी है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, किसी के 12 हाथ नहीं है, किसी के 12 कान नहीं है। इट इज सच ए यूनिवर्सल सेटअप। किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, चाहे वो आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो जहाँ जो अपने आप को बहुत एडवांस करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, कोई फर्क नहीं है शरीर में। लेकिन फर्क ये सिर्फ यही है कि इसमें we discussed many times, we have three types of body. One is the physical body, Right. Yes. right? Second is the emotional body. And third is the spiritual body. हम फिजिकल बॉडी जो जो मिरर हमें दिखाता है, उसी में जिंदगी बीत के चले जाते हैं। मिरर आपको देखो, वही मिरर है, मिरर तो आपने घर में चेंज नहीं किया, लेकिन आप देखते देखते बदल गए। आप अपनी जब जब हम कॉलेज जाते थे बिफोर मैरिज, एंड गलियों में मोहल्लों में खेलते थे, तो तब भी मिरर तो वही था, और वो हम देखते थे, तब भी देखते थे। व्हेन वी वर यंग, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ एनर्जी, मिरर घर में वही लगा हुआ है, आप वो देख रहे हो। अब जो हो गया है एट द प्रेजेंट टाइम, हम वो देख रहे हैं, शीशा तो बदला नहीं है, हम बदल गए, राइट। Yeah. ऐसे एक दिन वो शीशा तो वही रहेगा, हम चले जाएंगे, राइट, शीशा तो वही रहेगा। सो हम फिजिकल बॉडी को देख देख के जी रहे हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, कि मैं कैसे दिखाई देता। लेकिन हमें जब डॉक्टर की विजिट आती है, तो वहाँ तो खेल दूसरा है, वो तो आप MRI लेते हैं, Hmm. आपका एक्सरे लेते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं हो, उसमें तो सब कुछ चला जाता है। तो ये मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी जो सच्चाई है, उसके मुताबिक हम जी ही नहीं रहे, इसलिए हम दुखी हैं। तो अगर मुझे ये पता चला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसके अंदर रहता हूँ, Hmm. जिस विच इज द विजडम ऑफ भगवद गीता, वी आर नॉट द बॉडीज, वी आर लिविंग इन द बॉडीज, Right. राइट। लेकिन ये हम मानते नहीं है, जैसे हम जीते हैं, हम तो बॉडी को ही देखते हैं। इसके पीछे जो है दो बॉडीज और हैं, इमोशनल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है। तो स्पिरिचुअल बॉडी तक तो आप पहुंचते ही नहीं हो, इसलिए वाहेगुरु से, भगवान से, अल्लाह से, क्राइस्ट से बात आपकी हो ही नहीं रही, क्योंकि आप तो उस बॉडी में जा ही नहीं रहे। सो द आइडिया इज कि ये जो फिजिकल बॉडी है, इसमें रहना छोड़ो, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये ईश्वर का घर है। इस देखो, हमारे शरीर में एक दिल है, इसको हार्ट कहते हैं। तो एक गाना भी है, दिल एक मंदिर है, Record. दिल एक मंदिर है, भगवान की जिसमें होती है पूजा, ये ईश्वर का घर Yeah. है, ईश्वर का घर है। लेकिन अगर मेरे दिल में ईश्वर रहते हैं, तो मैं तो बात करता नहीं, मैं तो बात करता, लेकिन मैं गाने गा देता हूँ, और गाने अच्छे भी लगते हैं, इतने इतने सुंदर थॉट प्रोवोकिंग शब्द हैं, राइट। Oh, अभी yeah. आपने लिखा है, लेकिन शब्द तो ठीक है, लेकिन उसको बंद करके जरा ये भी देखो कि भाई मैं ये ऐसी जिंदगी बता भी रहा हूँ कि नहीं बता रहा। तो ये जो है कि स्टे बैक एंड थिंक
लोगों ने थिंकिंग छोड़ दी और गलत ढंग से वो सोच कर रहे हैं। सो ये जो फिजिकल बॉडी है इसका इतना ही ध्यान रखना है कि ये एक मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, मॉस्क है, चर्च है। जैसे उन धार्मिक स्थानों की हम केयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसको भी मेंटेन करना। लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मैं इसलिए इसकी केयर कर रहा हूँ कि इसके अंदर वाहिगुरु रहते हैं, उनको कोई डिफिकल्टी ना हो मेरे थ्रू कि मैं गलत मलत खाऊं, गलत मलत बातें करूं। तो वो जो है ये घर जो बिगड़ जाएगा, बाहर खा जाओ। तो जितनी भी हमें एलिमेंट्स आती हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑन योर आउटर फ्रेम, क्योंकि माइंड इज द लीडर ऑफ योर आउटर फ्रेम, आपके चेहरे से पता चल जाता। सो हम अगर आपने एनजाइटी इसलिए हमें होती है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशनल बॉडी, जो फिजिकल बॉडी के पीछे इमोशनल बॉडी का किंग जो है वो माइंड है आपका। माइंड माइंड। जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन। तो ये पक्की बात। तो माइंड जो है आपका, मतलब आजकल वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल, नॉट एनीबॉडी पर्टिकुलर, लोगों का जो माइंड है वो अजीब ढंग से उसको यूज करते हैं। माइंड इज एन ऑर्गन। देखो, जैसे अगर आपने अपनी लेग्स किसी ने स्ट्रॉन्ग करनी है तो दे हैव टू डू एक्सरसाइज, राइट? रनिंग, स्विमिंग एंड ऑल दैट। एंड वी सी इन द ओलंपिक्स छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका शरीर इतना फ्लेक्सिबल है, राइट? क्योंकि उन्होंने इस टाइप की एक्सरसाइज की है, राइट? लेकिन आम लोग जो है इस बात को करते नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, राइट? जब दिल आया कर लिया, डिसिप्लिन नहीं है, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसमें जो है वो एनजाइटी आती है। देखो, आप फर्स्ट थिंग इज एनजाइटी कि आप कार में, मैं कार में जा रहा हूँ, कोई भी कार में जाइए, हम जो, हाँ आप और मैं कह रहा हूँ, ये हम नहीं है, इट इज जनरल टॉक, राइट राइट। मेक द पॉइंट क्लियर। सो इफ आई एम सिटिंग इन द कार, आई एम ड्राइविंग, राइट? तो एज ए ड्राइवर मेरी ड्यूटी ये है कि बिफोर आई सिट इन द कार आई शुड बी काम। ये नहीं, राइट। ये नहीं कि भाई से या बच्चों से झगड़ा करके अब कहता हूँ मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ, अब तक कार में बैठ गया, राइट? नो, यू आर ए टाइम बॉम्ब। ओह। क्योंकि क्योंकि आप जिस चीज में बैठे हो वो तो जीनी है, उसको कंट्रोल करना पड़ता, तभी वो ठीक रहती है। सो व्हाट इज माय ड्यूटी? जब मैं घर से निकलूँ, आई शुड बी काम, काम। लेकिन आजकल कोई काम है ही नहीं, राइट? वो इतना उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। तो कार में जब हम बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं कि वो मैंने जल्दी जाना है, वो मैं लेट हो गया, अभी घर से चले भी नहीं है, दिमाग में ये है कि मैं लेट हो गया। सो ऐसे ट्रू। माइंड माइंड में जब आप कार में बैठते हो, राइट, यू आर एक्साइटेड, एजिटेटेड, और इसी को कहते हैं एक बड़े एंशियस हो आप कि मैंने जल्दी जाना है। तो रोड तो एक है, तो अगर सारे ही लोग ऐसे इसी तरह के ड्राइवर हैं जैसे मैं हूँ, तो वो रोड रेज होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। बिल्कुल ठीक दैट्स बोला ऑल। आपने। जैसे आप दैट्स लास्ट, अभी सॉरी, लास्ट एक दो हफ्ते पहले मीटिंग थी कोई, हेल्थ नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस की। 2 weeks ago there was a one, I think a doctor, very, I don't remember his name. He was talking about AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब में सुना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टेक्सास में तो उन्होंने ईवी कार्स विदाउट द ड्राइवर शुरू कर दिया है, couple of places. They are saying, he's saying, according, I mean, I listen to him, काफी बोला उसने कि within a few 3-4 years ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, AI आपको
पिकअप भी करेगी, आपको ड्रॉप भी करेगी, जहाँ मर्जी आपका प्राइवेट AI जहाँ मर्जी ले जाएगा आपको, कार विदाउट एनी ड्राइविंग. सो मे बी एट दैट टाइम वी डोंट हैव टू बी दैट मच केयरफुल अबाउट आवर माइंड, बट वी शुड. पता नहीं AI भी कैसे चलाता है, वी डोंट नो. बट दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट. नरेंद्र जी, आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर कर लिया सब कुछ. एंड इवन व्हेन यू गो टू डॉक्टर, हम सोचते हैं डॉक्टर देख रहा है, वो ये मशीन, वो ये इतनी बड़ी आएगी, विल आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस, तुम्हारी सारी डिटेल करेगा, ब्लड प्रेशर, ये वो एवरीथिंग, देन विल गिव यू द रिजल्ट. You don't have to see the doctor anymore even. This is what I That, grandkids. that I am fully aware of AI. I know, I'm sure you are. ये But what I'm saying is ये भी किस्म का फेयर ही है ना. देखो, नहीं, हमारे लोगों फियर भी है, because फियर भी है, एक it तो is a फियर fear है. because and we don't know what is there, right? But आज grandkids, जो मेरी grandkid अभी 13 की हो रही है, आपके भी grandkids हैं, एक 14 की है, एक 13 की है, बाकी छोटे भी हैं, 8 साल का, 5 साल का. What is their world going to be like? नरेंद्र जी, मुझे तो इस चीज़ की फिक्र है कि जब वो बड़े होंगे, टीनेजर्स बड़े, मतलब 18, 19, 20, Yeah. what is the world going to be at that time? मुझे तो ये इस चीज़ की फिक्र है. एंग्जाइटी, मतलब ये आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स ऑल द टाइम कि अभी ये कह रहे हैं AI में कारें आपको लेके जाएगी, यू डोंट नीड एनी ड्राइवर. सो व्हाट विल बी एट दैट टाइम? नहीं, पर ये इसको दिस काइंड ऑफ नहीं, थिंग्स. वीना जी, इसको कंपैरेटिवली सोचो कि व्हेन यू आर ए किड, हैं, तो आप जब स्कूल जाते थे, व्हेन वी वेंट टू प्राइमरी स्कूल, राइट, राइट. या आई नो, हमारे पास एक कलम होती थी, एक दवात होती थी, राइट, और एक स्लेट होती थी जिसपे हम लिखते थे, या राइट. दिस वाज द मोड ऑफ एजुकेशन. जमीन पे आप बैठते थे चौकड़ी मारकर, एंड जो टीचर आता था वो आपको पढ़ा दिया, आपने उसी स्लेट पे लिख लिया, फिर आप उसको इरेज करते थे. जो कुछ भी लिखते थे वो स्लेट पे ही लिखते थे, नहीं, तब बाद में वो इरेज करते थे. कोई होमवर्क नहीं था, कुछ नहीं था. एंड देन एक, अगर आपके एक ब्रदर, आप फर्ज करो अमृतसर में रहते, आपके एक ब्रदर दिल्ली में है, राइट, तो आप महीने में आपको एक लेटर आता था, लोग लेटर ही लिखते थे. या और अगर किसी ने पैसे भेजने हैं तो मनी ऑर्डर आते थे, राइट. राइट. और अब आप देखो कि आप वेट करते थे तो मेरे ब्रदर का लेटर नहीं आया, मेरे ब्रदर का लेटर. जो डाकिया था मेल में, उसमें वो में आपकी गली के आगे से जब चला जाता था तो आपको पता है आपकी मेल नहीं आई, राइट. और उसमें इतनी एनजाइटी होती थी, अगर आपको मनी ऑर्डर आना है, यू आर लुकिंग फॉर मनी, कि आपके फादर ने आपको मनी भेजनी है, तो मनी ऑर्डर अगर 10th को आना है तो 10th हो गई, 11th, 12th, मनी ऑर्डर आया नहीं, को मेल मैन आया, वो चला गया. तो वो देखो, उस जिंदगी में हम रहे, राइट, उस जिंदगी में रहे. और अब सारी की सारी, क्योंकि हमने एडजस्ट कर लिया, अब सारी की सारी एवरीथिंग इट इज इन योर सेल फोन. किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना, किसी गुरुजी के पास नहीं जाना, कोई भी आपने चीज पूछनी है आप इससे पूछ लो, राइट. इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है, आप अपनी मुट्ठी में लेके घूम रहे हो. तो दिस दिस विल हैपन. 100% करेक्ट. आई मीन, आपको आप भी जरा वो दिन याद है. देखो नरेंद्र जी, यू रिमेंबर दोज डेज. अभी भी इवन आई रिमेंबर ना, वहां से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, फोन के अंदर सब कुछ है, नॉलेज, सब कुछ. जो क्वेश्चन करना है चैट जीपीटी से पूछो, किससे यू कैन गेट ऑल द आंसर्स यू वांट. हिस्ट्री के क्वेश्चन, मूवीज के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिसीज, गवर्नमेंट, एवरीथिंग. यू कैन गेट एवरीथिंग ओवर देयर ऑन द राइट देयर, एक सेकंड में. तो That's the thing. ये तो मैं कह रही हूँ, हमारे होते ही ये सब कुछ हो रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. I'm just thinking, oh, like a little bit ahead, कि grandkids बड़े होंगे तो उनको कहते jobs, they're not going to be any jobs. Jobs का
मैं क्या करेंगे वो, कहते हैं एवरीथिंग विल बी, ये जो एआई टेक ओवर कर रहा है, लाइक वी कॉल अप बैंक के क्वेश्चन करना होगा तो हम कॉल करते हैं ना किसी चीज़ को, कस्टमर हम्म, सर्विस, कहते हैं आउट, देयर इज नो गोना बी एनी कस्टमर, एआई सब कुछ टेक ओवर, एआई इज गोना बी क्वेश्चन, यू गोना टॉक टू एआई। और कई बार हम कॉल करते हैं तो कोई एआई वाला ही कुछ समथिंग, इट्स लाइक अलेक्सा, ओके यू आस्किंग द क्वेश्चन, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग देयर, वही आंसर दे रहा है, वही आप क्वेश्चन कर रहे हो, but I don't know. So this is going to be taken over by, what are people going to do? What jobs are they going to be doing? पर एक बात आपने कभी सोची है कि ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, ये इतनी कॉम्प्लेक्स Oh और yeah. बड़ी चीज है, लेकिन इसमें एआई वाले जो भी प्रेजेंटेशन करने आते हैं, अगर उसको मैंने एक पूछा कि व्हाट अबाउट द ह्यूमन बॉडी, हम तो वैसे के वैसे रहे, तुमने चीजें तो बना ली तो मैं तो वैसे का वैसा रहा, या तो मुझे चेंज करो, राइट। Hmm. तो मैं तो वैसे ही आंखें हैं, वैसे ही मुंह है, वैसे सब कुछ है, तो हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हमारा शरीर है, राइट। जहाँ तो ह्यूमन बॉडी को बदलो, तुम चीजें बदल रहे हो, राइट। ह्यूमन बॉडी को ये बदल नहीं सकते क्योंकि वो वाहिगुरु की है। वो ह्यूमन बॉडी नहीं चेंज हो सकती क्योंकि ये इतना परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉम्पैक्ट करके ऐसा बनाया हुआ है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इसको छोटी सी प्रॉब्लम को टेक करने के लिए। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप एआई के थ्रू दी विजिबल बाहर की बड़ी दुनिया तो बड़ी चेंज कर रहे हो, व्हाट अबाउट द ह्यूमन बीइंग, उसकी इमोशन को क्या होगा। या तो एआई के थ्रू ऐसा करो कि सारे लोग स्पिरिचुअल बन हैं, ये जेलसी, ये फियर, ये एलिमिनेट हो जाए। वो कहता भाई साहब आप कपूर साहब, आप मुझसे ना पूछो, मुझे तो अपना भी नहीं पता। ये उसको, this was the answer of the person who was making presentation of AI technology. So the idea is कि दुनिया बदल रही है। पहले देखो, हम कहते हैं सतयुग, राइट, वी Hmm. डिवाइड द टाइम इन 4 पार्ट्स। Right. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और उन्होंने सनातन थॉट के थ्रू ये डिफाइन भी किया कि सतयुग में इस टाइप के लोग हैं, त्रेता में इस आदमी चेंज हो गया, इस टाइप का हो जाएगा, द्वापर में ऐसा हो जाएगा, और काल युग में तो एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप, लोग भी और एनवायरनमेंट भी। तो वो ठीक है, आप देखो सारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, वाटर इज पोल्यूटेड, Oh एयर yeah. इज, फायर इज पोल्यूटेड, खाने पीने का जो आप खाते हो और पोल्यूटेड, आपको पता नहीं आप क्या खा रहे हो। हम कहते हैं हमको, अब उन्होंने एक वर्ड ढूंढ लिया, ऑर्गेनिक, राइट। I know. और ऑर्गेनिक पहले नहीं था, जब हम पाल रहे थे एक देर चीज वाज में, नो। हर एक चीज ऑर्गेनिक, एंड मिल्क में भी ऑर्गेनिक, अच्छा, बटर, मिल्क, नहीं फ्रूट, नहीं, आप वेजिटेबल्स। वीना जी आप मेकअप कराने जाओ, अब वहां भी है ऑर्गेनिक वो वो जो मैं, आओगे, आई डोंट नो, आ- आई डोंट नो तो व्हाट। वन व्हाट द आइडिया, देखो हमारा टॉपिक था कि एनएक्साइटी, फियर, राइट, एंड रेस्टलेसनेस, ये एआई, इसका इनके पास कोई इलाज नहीं। This is like a fear. We don't know what's going to happen in a few years. What kind of a, and वो भी आदमी ने ये कहा था कि डॉक्टर के, मैं क्या, what do you do, कहता डॉक्टर has to put all the information in, तब भी क्वेश्चन करेगा ना। तो मैं क्या, वो डॉक्टर अगर he doesn't know, then how is, I mean AI is wrong. That's नहीं, वही ना दे- अगर मशीन ने सब कुछ करना है, then the medical colleges will be closed. वही, that's what I'm saying। मैं क्या, then what are the children going to learn? कोई लॉयर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई नर्स बन, like what kind of job, कोई सर्विस का, कोई कस्टमर सर्विस भी तो करते हैं लोग, आंसर Yeah, yeah. क्वेश्चन, you people, you need those kind of people, what will they do? There'll be no offices left। अभी तो कितने सारे ऑफिसेज जाओ, they all closed।
people are working from home. COVID के after, COVID के बाद people are working more in the house. So a lot Yeah, of we buildings in Manhattan are closed. Nobody's there. yeah we tasted that horrible period during that COVID. Yeah, 5 years Yeah. ago. Yeah. Yeah. So the idea is, आपकी बात सही है AI की, but my question is, AI will not change the emotional layer of the human being. Oh, won't. या वो तो शरीर थोड़ा हमारे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, Right. वो तो मशीनों की बात कर रहे हैं, चिन्हों की बात है. right? या तो वो ये कहें कि आपकी ये दो जो आंखें हैं ये अब 100 माइल देखा करें, आप तो हम वी कैनॉट सी मोर देन हाफ ए माइल। या तो ये AI के थ्रू ये कहें कि आपकी ये जो आईज हैं दे विल हैव द एबिलिटी टू लुक Hmm. नेकेड आई 1,000 माइल इन द स्काई, राइट? तब तो आई कैन अंडरस्टैंड। अगर मशीनें बना रहे जा रहे हो और ह्यूमन बॉडी तो वैसे वैसे रह रही है, Right. देखो, राइट? तो इट्स बिग डिस्क्रिपेंसी। तो ह्यूमन ह्यूमन जो है वो तो ऐसे बिहेव करेगा कि उसमें तो आप चेंज ला ही नहीं रहे, या तो उसमें कोई चेंज आए AI के थ्रू, राइट? कभी मैं जो है फूड खाऊं ना खाऊं, माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओके, आई डोंट नीड फूड, ये कोई नहीं कह रहा। फूड को कह देंगे कि फूड जो AI के थ्रू डिफरेंट हो जाएगी, बट अबाउट मी, मेरे तो ऑर्गन्स वैसे के वैसे हैं, राइट? चाहे वो डॉक्टर देखे, चाहे वो मशीन देखे, राइट? मैं Right. तो चेंज हुआ नहीं। मेरी सुनने की शक्ति जो है वो भी वही रहेगी, आंखों की देखने की शक्ति जो है वही रहेगी, राइट? तो Right. तो वी आवर सब्जेक्ट वाज द इमोशनल लेयर। Right. AI के थ्रू इमोशनल लेयर हैज नथिंग टू डू विद दैट। आप तो वैसे के वैसे हो, आपके सराउंडिंग चीजें बदल रही हैं, राइट? जैसे मैंने कहा कि कोई भी AI का एक्सपर्ट आके हमें ये नहीं कह रहा कि आज से 10 साल के बाद थ्रू AI ह्यूमन बॉडी की नेकेड आई कैन सी 1,000 माइल्स, नहीं। No. वो तो आप आधा मील से ज्यादा देख नहीं सकते, राइट? तो द आइडिया इज हम ऐसे ही रहेंगे, AI पे आगे पीछे घूमेंगे। We will see what तमाशा क्या होगा उसके साथ, but basically हम तो वैसे के वैसे रहेंगे. You're right. We will be the same. आप Nothing. देखो, अब मैंने एग्जांपल दी है, आपके पास सेल फोन है, राइट? हाँ. द होल वर्ल्ड लाइब्रेरी इज देयर। नहीं तो बिल्डिंगों में जाना, ये जो स्पेशली द लीगल प्रोफेशन, ये जो रिसर्च करते थे लॉ की, वो केस आ गया उसकी आप रिसर्च करनी है, जो असिस्टेंट थे वो लाइब्रेरी में जाके 6 6 महीने जाके नोट बनाते थे, राइट? एंड Mhm. देन दे विल प्रेजेंट टू द पर्सन हु इज एडवोकेट इन द केस इन द कोर्ट, Yes. उसको देते थे, राइट? अब जो है देयर इज नो रिसर्च, इसके No, थ्रू this आप is बैठे बैठे कर लो सारी। तो इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हमने सस्टेन की है, हमने देखी है। वी आर द आई विटनेस, वी आर द आई विटनेस। हमें किसी को कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमने देखा, वी हैव गॉन थ्रू दैट। और उस ट्रेडिशन में आपको पता भी नहीं चला कि ये क्या हो गया, आपको पता नहीं चला। हम किताबें पढ़ते रहे, ये नहीं देखा कि ये इस सेल फोन में तो सब कुछ आ गया। हम देखो, हम स्पिरिचुअल रिसर्च नहीं करते, देखा हम कहते हैं ना, जो गुरबानी है, इतनी बड़ी जो है सैक्रेड बुक है, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, तो आप इसमें सब कुछ देख लो, आपको गुरबानी पढ़ने की जरूरत नहीं है अब। उसके जो भाव हैं वो आप इसमें डाल के देख लो, जो वो आपको बताएगा वो तो ग्रंथि भी नहीं बता सकता। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमें पता भी नहीं चला, और हमारी बॉडी वैसी की वैसी रही। माई फादर वॉज लुकिंग लाइक द सेम, माई ग्रैंड फादर वॉज लुकिंग लाइक द सेम। हम तो ह्यूमन बॉडी तो वैसे आती रही, लेकिन आगे पीछे सब कुछ चेंज हो गया। ऐसे ही AI का जो जो इन्होंने वो पर्वत
फीवर क्रिएट किया हुआ है, वो हमें पता भी नहीं चलना। अब देखो उबर लेते हो आप, राइट, लेते हो कि नहीं? पहले इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं, No, राइट, no, लेकिन वी आर यूज्ड टू इट। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, राइट, माई मम्मा यूज्ड टू फीड द क्लोथ्स, है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा, राइट। तो हम उसमें भी रहे, लेकिन अब जो हो रहा है आपके घर में सब कुछ वो यही है, वो भी कि आप कपड़े no, something funny. मैं देखती थी ना लेडीज को, एक डंडा रखते थे ना, डंडा they used to clean the clothes with ऐसे ऐसे करके, साथ में एक डंडा सा रखा होता था, उससे भी करते थे साहब। माय गॉड, those days I seen people doing it and I used to see, my god, how are they cleaning the clothes? पर आजकल के जो कपड़े हैं उसमें नहीं वो कर सकते ना, राइट, ऐसा होता है। नहीं नहीं, द आइडिया इज, अब वो मारना पीटना कपड़ों को खत्म हो गया, राइट, अपने हाथों से हम कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी भी जो हमारी जिंदगी थी वो ऐसे ही हुई थी, लेकिन वो देखते देखते सब कुछ बदल गया। अब आपको कोई चिट्ठी नहीं आती कहीं से भी, कोई कोई मनी ऑर्डर नहीं आता। आप अभी कह रहे थे कि मेरे पास वो सिस्टम है, आई कैन सेंड मनी टू द एंटायर वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज, देखो आजकल राइट। तो जल जल जिंदाबाद, क्या क्या बात है, जल करो, खत्म हुई बात, एक सेकंड में पैसे मिल जाते हैं। तो, तो पहले पहले तो हम पोस्टमैन उड़ीकते थे कि भाई वो हमारा मनी ऑर्डर ले आए, राइट। तो अब जेल जेल जो टेक्नोलॉजी है चल ठीक है। आप देखो वो ना इंस्टेंट। पहले नरेंद्र जी, पहले देखो कितने लोग, कितने गाने भी बने हैं, कितने सारे गाने बने हैं, पीपल आर इन लव, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे, लव लेटर्स, वो पोस्टमैन के सामने वेट कर रहा है कि चिट्ठी कब आएगी। वो उसको लिखता है गर्लफ्रेंड को या जो भी उसकी बीवी है जो भी है, उसको 2 हफ्ते बाद, 1 वीक, 10 डेज, मे बी 1 मंथ, दे आर वेटिंग। अब एक सेकंड में ऐसे बटन दबाओ, गोज एवरीवेयर। पहले पहले जमाने की पिक्चरें भी हैं जिसमें जो पिजन है वो आपका लेटर लेके जा रहा हाँ, वो पहले मुगल के टाइम पे। है। जो लेला मजनू के टाइम में उसकी उस टाइप की पिक्चरें बनती थी कि आपके जो लेटर है वो कबूतर लेके जा रहा है। वो गाना भी है, कबूतर जा जा जा। I know that. I'm sorry. The audience. Sorry, we are laughing so much because life has changed so much. देखते देखते ही आप जी देखो, जी। आई मीन, हॉट वाटर, तो कोल्ड नहीं वाटर, पहले कहाँ हर चीज ठंडा पानी आ रहा है, गर्म पानी कहाँ आता है, अब देखो एक सेकंड में गर्म करो, एक सेकंड में नहीं एवरीथिंग। आप देखो ये जो गैस है आपके घर में, हाँ जब हम बड़े हो रहे थे तो वो चूल्हा होता था, हाँ उसमें लकड़ी जलाते थे, राइट। उसके ऊपर पतीला होता था, फिर जो जो भी सब्जी बनानी है, और उसको टाइम लगता था। अगर आपने सरसों साग बनाना है पूरा तो दिन। बड़ी चाटी में रख के चूल्हे के ऊपर रख के सारा परिवार उसके आसे पासे बैठ जाता था बट वो। और नरेंद्र जी, उस खाने का जो टेस्ट था ना, वो साग का टेस्ट, वो यू कांट बीट दैट। वो कि चूल्हे से नहीं, यहाँ गैस से नहीं होता, वो उसका ही टेस्ट होता है ना, अमेजिंग टेस्ट, टेस्ट। नहीं वो नहीं वो हमारे हमारी भी फैमिली बड़ी थी, जॉइंट फैमिली थी। तो जब वो साग बनता था हम तो सो जाते थे, बच्चे थे, हमारे हमारे जागते जागते तो बनता नहीं। हमारी हमारी बारी अगले दिन आती थी कि भी साग बन गया। तो हमारे मदर जो माता जी थे वो उसमें लकड़ी लगा के वो बैठे रहते थे, उसको जो है वो हिलाते रहते थे। तो जब वो बन जाता था ना, तो बिल्कुल देन बिल्कुल। जो है देयर वाज नो मिक्सी, देन यू हैव टू होल्ड दैट इन डू लाइक, यस। विद नहीं, यू हैव टू होल्ड दैट बर्तन अपने घोड़ों के अपनी नीज के अंदर, उसको प्रेशर करा के फिर आप ऐसे ऐसे कर। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। सो अब आप देखो, सो
I have a feeling in another 10 years, let's say 5 to 10 years, I'm talking about my grandkids. जब वो बड़े होंगे, वो सोचेंगे, oh my God, my mom was doing this. अब तो ये हो गया. The same way we are Yeah, thinking about yeah, our parents. हम आपके जो मदर की बात कर रहे हैं, हम जो भी उस yeah. जमाने की बात करें, हम सब सोच रहे हैं कि ये हम तो गैस में खड़े होकर everything. 10 years from now, guaranteed, our grandkids are going to think back and think, yeah, they were, our parents were, how come my mother was doing this? Now we are doing this. तो ये अभी भी होएगा ऐसे ही. नहीं The world is going to change. AI के It's थ्रू going to बेड AI के थ्रू देयर वोंट बी एनी बेड. आप खड़े खड़े सो जाओगे. change. That I don't because know. What's that? because there will be no beds. You Oh. you will be able to sleep while you are standing. So the idea is that was of the subject. So let us quickly deal our subject. For the emotional body में, right? वो मेरी अपनी इंडिविजुअल ड्यूटी है कि उसका जैसे मैं फिजिकल बॉडी का ध्यान रखता हूँ, ऐसे मेरी इमोशंस डिस्टर्ब ना हो, Hmm. उनका फ्लो चलता है, राइट? जैसे गंगा का पानी चल रहा है, ऐसे आपकी इमोशंस होने चाहिए, राइट? लेकिन वो टेक्निक हम भूल गए हैं, वो टेक्निक भूल गए हैं. और उसका टेक्निक ये है कि अगर आपने एनजाइटी या रेस्टलेसनेस या फियर को दूर करना है, तो इस इमोशनल बॉडी का जो किंग है वो आपका माइंड है. माइंड को आपको मैनेज करना चाह. To manage the mind, the technique is meditation. The definition of meditation is how to manage the mind. So until and unless you practice this art of meditation and start managing your mind, the emotional layer cannot be controlled. और उसमें न एंग्जाइटी रहेगी, स्लीपलेसनेस रहेगी, फियर रहेगा. सबसे बड़ा फियर जो इस दुनिया में है, दे डिड ब्रॉड रिसर्च, द फियर ऑफ डेथ. ये सबसे बड़ा जो True. जो फियर है. जब हम यंग होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, बट एज यू ग्रो यू सी द ट्वाइलाइट ऑन द होराइजन, तो तब आपको पता चलता है. तो वो जो डेथ का फियर है ना, वो बहुत बड़ा फियर है, लोग एक्सप्रेस नहीं करते. तो जो चीज आप होल्ड की हुई है उसका रिएक्शन, या तो उसको जाने दो, बिकम फियरलेस. लेकिन उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू होती है. वंस यू नो एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, Mm-hmm. उसके बिना ये माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता. और जितनी देर माइंड कंट्रोल नहीं है, आपकी जो इमोशनल लेयर है, इट इज ऑलवेज अपसाइड डाउन, ऑलवेज अपसाइड. अभी आप ठीक हो, 10 मिनट के बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया. That is true. तो एनजाइटी, मैंने कार की एग्जांपल दी है कि वंस आई sit in the car, right? I should be quiet, peaceful person. Mm-hmm. लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा. घर से लड़ाई करके या प्रेशर में, वो मैंने ये करना था, वो करना था, तो मैं जल्दी जाऊं. तो आपने अपनी बॉडी की जो इमोशनल लेयर है वो डिस्टर्ब कर दी. आपको आपके हाथों में स्टीयरिंग भी है, आपके पैरों में ब्रेक भी है, लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे क्योंकि अंदर से आप रेस्टलेस. आपका जो विजन है वो 2020 नहीं रहेगी. आपकी जो जजमेंट है वो क्लाउड हो जाएगी. आप में रेस्टलेस इतनी होगी कि आप लेन चेंज करते फिरोगे, राइट? तो ऐसा जो बिहेवियर है वो आपने देखा है, और हम भी अपने आप को एनालाइज कर, हमें करना चाहिए कि मेरा बिहेवियर ऐसा है. अब Mm-hmm. जब जब मैं दफ्तर से घर आता हूँ, एम आई पीसफुल? अगर मैं मेरे बॉस ने कुछ कह दिया आती बात, तो मैं घर आ रहा हूँ, तो आई विल गिव हार्ड टाइम टू माई वाइफ, टू माई किड्स, राइट? क्योंकि मेरी इमोशनल लेयर डिस्टर्ब है. सो Right. वी शुड बी वेरी वॉच.
कि I should manage my mind and keep my emotional layer in a scientific way, calm. लेकिन वो ऐसे बातें करने से नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस का मतलब ही है कि टाइम की रिस्पेक्ट। जब हम टाइम की रिस्पेक्ट नहीं ना करते, देखो आपने मुझे डिनर पे बुलाया, राइट, Hmm. बिफोर सब 8 PM आना, तो मैं जाता हूँ 8:30, तो आई हैव ऑलरेडी एक्साइटेड, आई डिड मॉरल इमोरल थिंग कि मैं आपके घर 8:30 जा रहा हूँ एंड यू वर रेडी टू वेलकम मी एट 8 o'clock, Right, right. राइट। सो आई कमिटेड ए मॉरल सिन कि मैंने आपको एक्साइट कर दिया। सो वी शुड डू सर्टन थिंग्स कि लोगों को एक्साइट ना करें। तो उसका मतलब है कि रिस्पेक्ट द टाइम। जो टाइम है 10 minutes बिफोर वी मस्ट रीच देयर। तो क्योंकि मेरी ड्यूटी होनी चाहिए कि मैं आपको एक्साइट ना करूं इमोशनली, राइट। आपकी भी ये ड्यूटी होनी चाहिए, right? कि मैं जब आपके घर आऊँ, ये नहीं तो आप आपने मुझे डिनर पे बुलाया था, आप घर ही नहीं हो, That's not good. Yeah. राइट। सो देन यू एक्साइटेड मी, राइट। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो, ना तो लोगों को एक्साइट कर और ना लोगों के थ्रू आप एक्साइट हो। तो your personality should be stable, or stability only comes when your emotional body is stable. I gave you an example. So this is what our subject is, कि don't excite people with your behavior and don't get excited. It is a moral sin किसी को एक्साइट कर, ऐसी मतलब वार्तालाप करो, ऐसा डायलॉग करो which is pleasant, honest, otherwise keep quiet, right? Right, right. हम लूज टॉक करके घर आ जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मैंने कितना बड़ा मॉरल सिन किया है, उसको मैं अच्छा बड़ा वो बैठा था, अब सारी सारी रात सोएगा नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक है कि इमोशनल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माइंड की है, और माइंड को मैनेज करना द टेक्निक इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर टाइम, Right. रिस्पेक्ट फॉर टाइम, एंड always follow that system। जो आप दूसरों को कहते हो आप फॉलो। Mm. सो दिस वाज आवर टॉपिक। फिर आप फियरलेसनेस स्टेट में चले जाओगे, इज नो फियर। और ये जो डेथ का फियर है, इसमें भगवत गीता ने एक और आप श्लोक दिया कि जैसे है, बीना जी ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है Mm-hmm. कि जैसे जैसे हम ये पुराने कपड़े हो जाएं, तो मैं अगर मेरा शर्ट पुरानी है, मतलब, तो मैं उसको बदल के दूसरी डाल लेता, राइट। Mm-hmm. योर बॉडी इज ए कपड़ा। जब ये ओल्ड हो जाती है तो आप नई बॉडी ले लेते हो इन द फॉर्म ऑफ दिस न्यू बॉर्न बेबी, राइट। Mm-hmm. क्योंकि आपकी तो डेथ होती नहीं है, यू आर द स्पिरिट, यू आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ डिवाइन फोर्स। वो डिवाइन फोर्स इज ऑलवेज देयर। तो जिस घर में रहना है, अगर इस घर में रह ये जो है वो पुराना हो गया है, तो वो चेंज कर लेते हैं। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? लेकिन हम बात तो समझते हैं, लेकिन लाइफ एडजस्ट नहीं की हुई हमने, लाइफ एडजस्ट नहीं की हुई। सो ऑलवेज ट्रीट योर बॉडी कि इट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट, अर्थ है, Right. वाटर है, स्काई है, राइट, फायर है। ये 5 एलिमेंट जो हैं, इससे आपकी, और ये सारे चेंजेबल हैं। तो जो चीज जिस मटेरियल से आपकी बॉडी बनी है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। इसलिए हम बच्चे से जवान हो गए, जवान से फिर थोड़े और जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए। सो आउटर फ्रेम पे अपनी जिंदगी ना बताओ। जो इनर है, इनर मीन्स जीवात्मा, Yes. विच इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ परमात्मा, which is the responsibility when you go into spiritual layer, जिसमें हम जाते नहीं हैं। फिर आपको पता चलता है मैं तो
इस झगड़े में पड़ा रहा, मैं तो ये था ही नहीं, मैं तो इधर का काम करना था। So this is what our topic is. topic कि is. anxiety, fear, restlessness, control it. Control it because don't excite others and don't get excited. Respect the time. Respect the time. आपको एंग्जाइटी होएगी नहीं। ये सारा झगड़ा जो दुनिया में है, nobody respect time. शादी के कार्ड 2 महीने Exactly. पहले बहुत ही खराब है, that's the worst thing anybody can do. टाइम की रिस्पेक्ट ना करो। टाइम से किसने बुलाया है, you have to do such, I mean, sometimes I'm 5 minutes late, I feel very bad. Oh my god, मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ। Then I see कि इतने लोग अभी आ ही जा रहे हैं, मैं कब, but I still feel guilty कि मैंने 5 मिनट पहले पहुंचना था। पर मेरे बाद में तो लोग आ ही जा रहे हैं, they don't have that feeling. I feel guilty. So I really respect time a देखो lot. 99% populace of the world today I am talking, they don't respect time. Exactly, you're right. And that is the root cause, prime cause of restlessness, Anxiety, fear. anxiety, अगर fear. मैं जॉब पे जा रहा हूँ, एक तो मैं रेस्टलेस हूँ और एक अंदर से फियर है कि बॉस क्या कहेगा, Hmm. समझो, राइट? Yes. किसी मैंने बच्चे को स्कूल से लेना है? मेरी मेरी ड्यूटी है कि बच्चों को मैंने पिकअप करना। सो अगर आप लेट हो, वट एवर रीजन, आप में कितनी एनएग्जाइटी है, और बच्चों को क्या होगा, वो अकेले रह जाएंगे, ये है वो है। लेकिन अगर अगर मैंने शांत रहना है, एनएग्जाइटी और फियरलेस रहना है, आई शुड बी देयर 10 minutes बिफोर Right, एट द right. गेट, एट द Yes. गेट, राइट? सो ये स्मॉल चीज़ें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं, जो आपकी एनएग्जाइटी लाती हैं, जो आप में फियर लाती हैं, रात को आप सोते नहीं हो। इसीलिए रिस्पेक्ट द टाइम, रिस्पेक्ट द टाइम। जब आप रिस्पेक्ट करते हो टाइम की, आपकी इमोशनल लेयर इज स्टेबल, स्टेबल। एंड जब आपकी इमोशनल लेयर स्टेबल है, द अदर नेम इज यू आर पीसफुल। Yes. That is true. जब आप पीसफुल हो, यू आर लुकिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, फ्रेंडशिप। अगर आप पीसफुल नहीं हो, तो वो सबसे लिपसंत है, क्योंकि वो फिर इमोशनल बात नहीं हो रही। Oh, So yeah. we will conclude our chapter now, कि to become fearless and to manage restlessness and the anxiety part, respect the time, and think differently. Okay, I am not the body, I am living in the body. Third, this body will change, I will not change inside, I will get a new body. जैसे पुरानी कमीज मैंने बदल के नई डाल ली, तो नई जब मैंने डाली तो मैं खुश हूँ, मैंने मैंने पुरानी फेंक दी। लेकिन हम इसको एडजस्ट नहीं करते अपनी थिंकिंग में। तो जैसे ये फर्ज करो शरीर डिसमेंटल हो जाता है, आई शुड बी हैप्पी, आई विल गेट ए न्यू वन, राइट? लेकिन इतनी बड़ी सोच जो है एडजस्ट करनी, वो एडजस्ट होती नहीं है, बिकॉज 70-80 ईयर जिसकी भी, जो भी जिस स्पैन में है, उसने प्रैक्टिस इस बात की है कि मैं मर जाऊं। So it is all thoughts, and once you understand the thought and hold it and practice it on a daily basis, cost effective, आपने कुछ लेना नहीं है किसी से। So let us pray that we sustain these thoughts and try to practice and manage your mind through meditation and respect time. So that was our subject. Thank you so much, Narinder ji, for this wonderful session. And हमने बड़े क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, हमने अपनी भी few things I wanted to ask pertaining to this particular topic. तो मैंने किया क्वेश्चन आपसे, we came to good discussion about that. Few things are fearing, like fear, future में क्या होगा, all these things. So आपने I think we discussed it very well. So if anybody has any questions, for further questions or any topic you like us to discuss, please do let us know. So Narinder ji will, I'll pass the information to him and then we can discuss that. So I will say thank you to all of you. Have a wonderful weekend
And thank you so much for joining us today. I can see Ramaji and Kamlesh ji and I think Usha ji हैं यहाँ पर and Biba ji भी हैं and a couple of other people. So I want to thank all of you so much. Please do forward the program to so that other people can also watch and maybe they can learn something. So we'll see you here next time, next week sometime, and next week on Wednesday and Friday. So I will say have a wonderful weekend and thank you, Dhirendraji, for a wonderful session today. Very, very timely and very good to know. Like you said, be on time always. No procrastination, right? Time. So इसको ये subject रो में फिर दोबारा एक बारी फिर करेंगे because it's a very go a little bit deeper into it. Why people do that? Why the people go late? What is in their mind when they do that? So these kind of things will go on one more time. Topic about this thing. So please let us know if anybody has any questions about that, and we can bring them up. Okay, thank you so much, Nirindra ji, and have a wonderful weekend. And see you soon. मिलते हैं, everybody. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye. Nice weekend, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.